Good afternoon, everyone. In the previous class, we had completed the topic of comparative and common size statements. Any doubts up to there, anyone? No, sir. Okay. So we begin the topic of ratio analysis. Accounting ratio depicts an arithmetical relationship between two accounting variables. Ratio basically क्या होता है? Ratio is an arithmetical relationship between any two numbers. So accounting ratio is an arithmetical relationship between two accounting variables. It can be expressed in various ways. For example, अगर हम current assets और current liabilities का ratio निकाल रहे हैं, current assets हैं ₹2 लाख, current liabilities हैं ₹1 लाख, then ratio of current assets to current liabilities can be expressed in different ways. First way is as a pure ratio, we will say 2:1. Second way is as a percentage, we will say current assets are 200% of current liabilities. Third way is in number of times, we can say current assets are 2 times the current liabilities. Or the fourth way is as a fraction, that is current assets ratio to current liability is 2/1. Is this clear? Yes. Yes, sir. Yes. रेशियो एनालिसिस, ये तो हो गया रेशियो. नाउ व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among various financial factors in a business. There are various types of ratios. According to traditional classification, ratios are categorized as income statement ratios, when both the amounts involved in the ratio are taken from the statement of profit and loss only. Okay. For example, ratio of net profit to sales, ratio of gross profit to sales, ratio of any expense to sales, and so on. Then second type is balance sheet ratios, where both the amounts involved in the ratio come from balance sheet. For example, current assets to current liabilities, maybe fixed assets to non-current liabilities, maybe debt to equity. So these are balance sheet ratios. And third type of ratios are composite ratios, where one amount comes from income statement and the another amount comes from balance sheet. For example, net profit to equity. Net profit is coming from statement of profit and loss, and equity capital we will get from balance sheet. Right? Simply, in a similar manner, ratio of net profit to fixed assets may be one figure coming from income statement, another figure coming from balance sheet. Is this categorization clear? Yes. Yes, sir. Now, according to functional classification, ratios are classified as liquidity ratios, which show the ability of business to meet day-to-day financial obligations and to pay current liabilities timely. Second are solvency ratios, which show the ability of business to meet or pay long-term financial obligations or liabilities timely. Short-term liabilities, day-to-day expenses को पे करने की ability कितनी है firm की? That is called liquidity. और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने में फर्म कितनी कैपेबल है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है, उसके लिए दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी. क्लियर? Yes, sir. Third type of ratios are activity or turnover ratios. These ratios show how efficiently various resources are used and operations are carried out to generate revenue. And the fourth category is profitability ratios.
which show how profitable the business is. These 4 categories clear? Yes, sir. और एक बार एक्टिविटी रेशियो बता दो। एक्टिविटी रेशियो होते हैं जो बताते हैं कितना एफिशिएंटली हमारी रिसोर्सेज यूज हो रही हैं बिजनेस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि हमारा स्टॉक ऑन एन एवरेज साल में कितनी जल्दी सेल हो जाता है, पूरे साल में कितनी बार हमारा स्टॉक, जो एवरेज स्टॉक जितना हम रखते हैं साल में कितनी बार वो सेल हो जाता है। जितनी ज्यादा बार सेल हो रहा है इसका मतलब हमारी सेल्स उतनी अच्छी है, ठीक है। यस सर। बाकी अभी आगे और करेंगे जब रेशियोज इन सब कैटेगरीज में तो और क्लियर होता जाएगा। ओके सर। Now we will discuss various ratios in each of these categories one by one. First is liquidity ratios. Liquidity को हम short term solvency भी कह सकते हैं और solvency को हम long term liquidity भी कह सकते हैं. These ratios are expressed in pure form. Liquidity ratios मैंने क्या बताया? What do they tell us? कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कैसी सिचुएशन है बिजनेस की। यस, वेरी गुड। तो इस कैटेगरी में हम 2 रेशियोज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज करंट रेशियो। लिखो फॉर्मूला, करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सर हम लिक्विडिटी रेशियो को हमेशा प्योर फॉर्म में ही रखेंगे। यस। उसके आगे लिखो, इन करंट एसेट्स लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंटरीज। इनको नहीं लेना, अगर क्वेश्चन में ये अलग से दिए हों लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर, तो करंट एसेट्स में इन्हें नहीं लेना। और दूसरा नोट लिखो, ट्रेड रिसीवेबल्स आर टेकन आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है डेटर्स का, वो वाला अमाउंट लेते हैं करंट एसेट्स में। इसमें यस सर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो। अगर इस रेशियो की वैल्यू आती है 1:2, इसका मतलब क्या हुआ? करंट लायबिलिटी 2 टाइम्स करंट एसेट से। करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से डबल है, या हम कह सकते हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के हाफ है। तो अगर हमें सारी करंट लायबिलिटीज पे करनी पड़ जाए तो हम नहीं कर सकते करंट एसेट्स, क्योंकि करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म में पे करनी होती है। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म में रियलाइज हो सकते हैं कैश में। तो सारे करंट एसेट्स बेचकर भी सिर्फ हाफ करंट लायबिलिटीज पे हो सकती हैं, बाकी हाफ फिर भी पे नहीं हो पाएंगी। Then what will you say about the liquidity position? Very poor. Very poor. Because if all current liabilities are to be paid immediately, all current assets, including cash and bank balance, will be completely used, and still only half the current liabilities will be paid. So liquidity is very poor. अब second scenario लेते हैं. Suppose this ratio is 1:1. इसका क्या मतलब हुआ? Equal. करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो इसमें आप लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में क्या कहोगे? कैसी पोजीशन है? पुअर, क्योंकि यूज हो जाएंगे कंप्लीटली, बट आगे के लिए वर्किंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। यस, एब्सोल्युटली, इट इज स्टिल पुअर। लिक्विडिटी पोजीशन इज स्टिल पुअर। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटीज तो सारी पे हो जाएंगी,
सारे करंट एसेट्स को यूज करके, लेकिन ये सोचो कि कैश भी जीरो हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी जीरो हो जाएगा, स्टॉक नहीं होगा, कोई और करंट एसेट नहीं होगा, तो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज कैसे चलेंगी फिर? तो इसलिए इवन इन दिस सिनेरियो द लिक्विडिटी पोजीशन इज पुअर। अगर इस रेशियो की वैल्यू आती है 2:1, इसका मतलब करंट एसेट्स आर डबल करंट लायबिलिटीज। आप लिक्विडिटी के बारे में क्या कहोगे? अच्छी है। अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। मतलब करंट एसेट्स, अगर सारी करंट लायबिलिटीज पे करनी पड़ भी जाए इमीडिएटली, तो भी हमारे आधे करंट एसेट्स तो बचेंगे। सो दिस इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी। और इससे जितना हाई होता जाएगा रेशियो, लिक्विडिटी पोजीशन उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। A ratio of 2:1 is generally considered ideal. ये जनरली बोल्ड में क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में ये अच्छा हो, सेटिस्फैक्टरी हो। इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बट जनरली का मतलब है ज्यादातर फर्म्स के लिए 2:1 का रेशियो ये सेटिस्फैक्टरी या आइडियल माना जाता है। हाइयर द रेशियो बेटर द लिक्विडिटी। लेकिन अगर रेशियो बहुत हाई हो, सपोज 5:1 है, 6:1 है, तब आप क्या कहोगे? लिक्विडिटी कैसी है? बहुत ज्यादा अच्छी है। बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन क्या उससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है? वेस्टफुल मतलब है कि बिजनेस अपने फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा। यस, लिक्विडिटी तो बहुत अच्छी है। अगर 4:1 से भी ज्यादा वैल्यू आ रही है इस रेशियो की, तो लिक्विडिटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कमेंट करने को कहा जाता है जहां पे करंट रेशियो की वैल्यू 4 से भी ज्यादा आ रही हो, 4:1 से भी, तो आप कहोगे लिक्विडिटी पोजीशन इज वेरी गुड, बट इट इज पॉसिबल दैट, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 1, फंड्स आर लाइंग आइडल, some of which can be invested to earn further return। मतलब जरूरत से ज्यादा हमने शायद कैश या बैंक बैलेंस रखा हुआ है, उसमें से कुछ अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करके उस पे भी रिटर्न कमाई जा सकती है। और ओवर स्टॉकिंग है, मतलब स्टॉक हो सकता है बहुत ज्यादा हो, इसकी वजह से करंट एसेट्स इतने ज्यादा हो। लेकिन अगर स्टॉक ज्यादा है तो स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका मतलब हम डेटर से, बिल्स रिसीवेबल से टाइमली अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पा रहे अगर उनका अमाउंट बहुत ज्यादा है तो अगर इन तीनों में से कोई रीजन है तो वो दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्लियर? यस सर। Second ratio in this category is liquid ratio, also called quick ratio, also called acid test ratio। और इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स, जिनको हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। Yes, sir. Why do we call this liquid ratio? Because न्यूमरेटर में हम ले रहे हैं लिक्विड एसेट्स। क्विक रेशियो भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि लिक्विड एसेट्स को क्विक एसेट्स भी कहा जाता है। एसिड टेस्ट रेशियो क्यों कहते हैं? एसिड टेस्ट आपको ध्यान है, साइंस में आपने पढ़ा होगा भी किसी क्लास में। यस सर, लिटमस पेपर पे जो होता था। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक उसमें सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। और अगर रेड लिटमस पेपर को आप बेस वाले सॉल्यूशन में डालोगे वो ब्लू हो जाता है। इमीडिएटली पता चल जाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इस रेशियो से इमीडिएटली पता चल जाता है कि लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो। क्लियर? Yes, sir. लिक्विड एसेट आपको याद है कौन से होते हैं? 11th में पढ़े थे हमने। जो easily converted into cash हो जाते हैं।
Yes, which can be converted into cash easily and quickly without any loss. कौन से होते हैं ये? सभी करंट एसेट्स एक्सेप्ट टू. करंट एसेट्स में से अगर दो को निकाल दिया जाए, एक स्टॉक जिसे हम इन्वेंट्रीज भी कहते हैं और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, तो इन दो को लेस कर दें तो बाकी के करंट एसेट जो हैं वो लिक्विड एसेट्स हैं. इन दोनों को क्यों लेस करते हैं? क्योंकि सर इन्हें रियलाइज होने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा. यस. स्टॉक क्या होता है? सर रॉ मटेरियल्स, स्टॉक इन ट्रेड. Yes, and even finished goods which are lying unsold. अगर वो बिक सकते होते तो why would they have been lying unsold? They are lying unsold because अभी नहीं सेल हो रहे. ठीक है, तो इमीडिएटली अगर हम उन्हें बेचना भी चाहेंगे तो हमें कुछ हैवी डिस्काउंट वगैरह देना पड़ेगा, मतलब कुछ लॉस उठाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इमीडिएटली उन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अगले पूरे साल का एडवांस में पे हो जाता है. प्रीपेड एक्सपेंसेस जनरली रिफंडेबल नहीं होते हैं, उनके बदले में हमें सर्विसेज मिलती हैं और रिफंड हो भी तो कुछ अमाउंट डिडक्ट होके मिलता है. तो इसलिए इन दोनों को हम लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते. क्लियर? यस सर. किसी भी रेशियो को आपने समझना हो, उसकी सिग्निफिकेंस को, तो अलग अलग वैल्यूज उसकी 3-4 आप लेके एज्यूम करो और समझने की कोशिश करो उसका क्या मतलब होगा. जैसे हमने करंट रेशियो में किया, ऐसे ही हम बाकी में भी करेंगे. अब लिक्विड रेशियो में अगर हम कहें वैल्यू इज 1:2, मतलब वेरी पुअर. लिक्विड एसेट्स हाफ है करंट एसेट्स के. करंट लायबिलिटीज के, तो मतलब सारी जी, करंट correct. लायबिलिटीज अगर पे करनी पड़ जाएं तो सारे लिक्विड एसेट्स को कैश में खत्म करके भी सिर्फ हाफ करंट लायबिलिटीज पे होंगी. सो लिक्विडिटी इज वेरी पुअर. अगर इस रेशियो की वैल्यू 1:1 हो, मतलब लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी. इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, इस केस में हम कहते हैं लिक्विडिटी इज सेटिस्फैक्टरी. कि ठीक है, बाकी सारे जो सारे लिक्विड एसेट्स यूज हो जाएंगे ना, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, तो फिर भी बचेंगे. ठीक है, सारी करंट लायबिलिटीज को पे करने के बाद भी, तो इसे जनरली सेटिस्फैक्टरी माना जाता है 1:1 को. अगर वैल्यू 2:1 है तो लिक्विड एसेट्स डबल करंट लायबिलिटीज. डबल है, तो लिक्विडिटी पोजीशन इज गुड. मतलब सारी करंट लायबिलिटीज पे करनी पड़ जाए तो भी हाफ लिक्विड एसेट्स बचेंगे. लिक्विड रेशियो इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी देन करंट रेशियो as it measures the ability to pay current liabilities immediately. तो करंट रेशियो से बेटर इंडिकेटर माना जाता है लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी का. A ratio of 1:1 is generally considered ideal. Higher the ratio, better the liquidity. But again, if it is very high, then again वही 3 पॉइंट्स हैं कि हो सकता है funds are lying idle, or there is overstocking, or large amount of trade receivables are there reflecting poor collection from them. Clear yahan tak? Yes, sir. Now let's do 2 illustrations to understand this further. Is this screen visible? यस सर. Question लिखो पहले आप. From the following particulars, calculate current ratio and liquid ratio. और ये सब लिख लो. Inventories 20,000, cash 35,000, prepaid rent 15,000, salaries outstanding 40,000, debtors 80,000, bank 30,000, bills receivable 20,000, provision for expenses 25,000, furniture 5 lakh, marketable securities 10,000, creditors 5,000, 8% debentures 9 lakh. ये लिख लो पहले पूरा.
फिर आगे इसे सॉल्व करते हैं। रिटर्न ओके। अब स्टार्ट करते हैं, लिखते जाओ साथ साथ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट करंट एसेट्स एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कोई भी रेशियो निकालना है हमने तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। रेशियो के क्वेश्चन में जनरली टेंडेंसी क्या होती है, बड़ा मन करता है कि फटाफट लिखो दिस अपॉन दिस और सीधे आंसर निकाल के लिख दो। हो सकता है बहुत से क्वेश्चंस में, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर डायरेक्टली आपने आंसर फटाफट निकाल के लिख दिया, बेशक ओरली आपके माइंड में कैलकुलेट हो गया, आप सीधे आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज उससे ये नहीं पता चलता कि आपको खुद सॉल्व करना आता है या ऐसे ही आपने गेस वर्क कर दिया या कहीं से आपको आंसर पता चल गया वो आपने लिख दिया। सो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। सो करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर हम फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पर। करंट एसेट्स देखो इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं हमें। इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, इन्वेंट यस सर, यस सर, कैश है, यस यस सर, सर, तो इस तरह से लिखते जाएंगे इन्वेंट्रीज प्लस कैश। व्हाट अबाउट प्रीपेड रेंट? यस सर, व्हाट अबाउट सैलरीज आउटस्टैंडिंग? करंट नहीं, लायबिलिटीज, करंट liability है। लायबिलिटी है, तो ये डिनोमिनेटर में लिख लो सैलरी आउटस्टैंडिंग। डेटर्स करंट एसेट्स, तो न्यूमरेटर में लिख लो प्लस डेटर्स। बैंक करंट Current एसेट्स, न्यूमरेटर में लिख लो। बिल्स रिसीवेबल्स करंट Current- एसेट्स, न्यूमरेटर में। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, तो डिनोमिनेटर में लिखो। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट, ना करंट Fixed एसेट है asset. ना करंट लायबिलिटी है, तो इसमें कहीं नहीं आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट Current एसेट, तो न्यूमरेटर में लिख लो। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, डिनोमिनेटर में लिख लो प्लस क्रेडिटर्स। 8% डिबेंचर्स लॉन्ग Non- टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो कहीं नहीं आएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज डालो। इन्वेंट्रीज की वैल्यू 20,000, फिर कैश प्लस 35,000, फिर प्लस 15,000 प्रीपेड रेंट का, प्लस 80,000 किसका? डेटर्स का, प्लस 30,000 बैंक, प्लस 20,000 बिल्स रिसीवेबल, प्लस 10,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 40,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, 25,000 प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, 5,000 क्रेडिटर्स। और अब इन सबको ऐड कर लो। न्यूमरेटर का टोटल देखो कितना आ रहा है, 2 lakh. 2,10,000, और डिनोमिनेटर का 70,000, रेशियो कितना आ गया? 3:1. 3:1। ठीक है, कोशिश ये करनी है रेशियो निकालते हुए हमेशा कि डिनोमिनेटर हमारा 1 आ जाए। यहां तक सिंप्लीफाई करना है कि 1:1 की टर्म्स में आ जाए रेशियो हमारा, यानी डिनोमिनेटर 1 आ जाए। ठीक है, यस सर सर, मतलब हमारा न्यूमरेटर फिर पॉइंट्स में भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। ओके सर, लिख लिया यहां तक? यस सर. अगला क्वेश्चन में कहा हुआ है लिक्विड रेशियो भी निकालना है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखो।
लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लो, लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड रेंट अपॉन करंट लायबिलिटीज। यस सर। ठीक है, करंट एसेट्स हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं 2,10,000, तो वैल्यू हम डालेंगे 2,10,000 माइनस इन्वेंट्रीज कितनी है 20,000, और प्रीपेड रेंट कितना है 15,000, ये दोनों लेस कर दो, तो न्यूमरेटर आ गया अब लिक्विड एसेट्स 1,75,000 और करंट लायबिलिटीज भी हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी हैं 70,000। सो द रेशियो इज 2.5:1. 2.5:1। क्लियर? यस सर। सिंपल है। यस सर। लेकिन मैं बार बार कहता हूं जो चीजें जितनी सिंपल होती हैं उनमें केयरलेस मिस्टेक्स के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स कि अच्छा ये तो सिंपल है, तो ध्यान से करना है। What can we say about the liquidity of this firm? Good. गुड। Liquidity position is good. अब सेकंड इलस्ट्रेशन लिखो, from the following particulars calculate liquid ratio. Working capital 6 lakh, current ratio 2.5:1, इन्वेंट्रीज 70,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 30,000, बस ये दे रखा है। Yes, sir. Now, how will you calculate liquid ratio? उसके लिए तो लिक्विड एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। इस क्वेश्चन में ना लिक्विड एसेट्स दिए हुए हैं ना करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, तो कैसे निकालेंगे? सर पहले current ratio से Shall we write in the answer in adequate information not given in the question? नो सर। No, sir. No, we can. Yes, of course we can, but उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर जब हमें डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई जो हमें चाहिए, तो हमें थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी कि वो इंफॉर्मेशन क्या हम निकाल सकते हैं जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे। इस केस में क्या हम निकाल सकते हैं? Yes, sir. कैसे? Yes, यस सर। sir. Current ratio दे रखा है 2.5:1 और current ratio होता है current assets upon current liabilities. ठीक है, मतलब कि current assets is 2.5 times current liabilities. वेरी गुड। और तो वर्किंग मैंने लिख दिया, तो Working सर capital- वर्किंग कैपिटल होता है current assets minus current liabilities. यस, वेरी गुड। तो Please आ जाइए। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो यू सेड वेरी राइटली is 2.5:1 means current assets are 2.5 times the current liabilities. पहली स्टेटमेंट तो ये लिख लो। Yes, sir. उसके बाद हमें पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 6 लाख। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 6 लाख इक्वल्स करंट एसेट की जगह हम लिख सकते हैं 2.5 CL। अगर हम करंट लायबिलिटी को CL लें तो हम करंट एसेट की जगह लिख सकते हैं 2.5 CL।
Yes or no? Yes, Yes. sir. So करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये हो गया 2.5 CL माइनस CL. क्लियर है ये इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये अगेन आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म्स आपने यूज नहीं करनी है. इसको सीधे आप CACL नहीं लिख सकते. आपने पहले एक बार स्टेटमेंट लिखनी है, करंट एसेट्स ब्रैकेट में लिख दिया CA, फिर एक बार आपने पूरा लिखा करंट लायबिलिटीज ब्रैकेट में लिख दिया CL. अब आगे की कैलकुलेशन में आप CACL ये टर्म्स यूज कर सकते हो, लेकिन पहले फुल फॉर्म दिए बिना डायरेक्टली CACL नहीं लिख सकते. ठीक है, Yes, sir. यहां तक लिख लिया. Yes, Yes. yes, sir. तो 2.5 CL माइनस 1 CL कितना हो गया? 1.5. 1.5 CL. दैट मीन्स 1.5 CL इज इक्वल टू 6 लाख. अब उसे सॉल्व कर लो तो 1.5 इस साइड जाके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा. सो दिस इंप्लाइज CL इक्वल्स 6 लाख अपॉन 1.5. तो करंट लायबिलिटीज हमारी निकल आई. अब अगेन फाइनल आंसर लिखते हुए फिर से फुल फॉर्म लिखेंगे, CL इज इक्वल टू नहीं लिख देंगे सीधा. दिस इंप्लाइज करंट लायबिलिटीज इक्वल्स ₹4 लाख. Yes, sir. Yes, sir. अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? Sir, 2.5. 2.5 times कर दो 4 लाख का. 10 एग्जैक्टली लाख. एग्जैक्टली. कितना हुआ? 10 लाख. 10 करंट लाख. इक्वल 2.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज. दैट मीन्स 2.5 टाइम्स ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू ₹10 लाख. Yes, sir. ठीक है, यही हमें निकालना था. लिक्विड एसिड भी लिक्विड निकालनी है. रेशियो भी निकालना है. तो अब लिक्विड एसेट्स के लिए क्या होगा? Current assets करंट minus. एसिड्स Current माइनस assets प्रीपेड में से- इंश्योरेंस माइनस. हाँ, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर दो, यानी 1 लाख रुपीस कम हो जाएंगे. तो कितना रह जाएगा? 9 lakh. 9 लाख. नेक्स्ट स्टेप लिखो. अब फॉर्मूला लिखो लिक्विड रेशियो का, इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज Yes, sir. इज इक्वल टू 9 लाख अपॉन 4 lakh. 4 लाख. तो क्या आई वैल्यू रेशियो की? 2.25 times. 2.25:1. 2.25 is to. वेरी गुड. क्लियर है यहां तक? Yes, Yes. sir. सर, ये बुक कितने मार्क्स की है? ये बुक्स आपकी आई थिंक 20 या 25 मार्क्स की. एक बार रिवाइज सिलेबस को फिर चेक कर लेना. 20 मार्क्स है आई अच्छा, थिंक. okay. 20 या 25 ऐसा कुछ है. ओके. सर, इसके सारे चैप्टर ऐसे ही हैं, मतलब इसे ऐसे ही है मतलब कैसे? इजी. हाँ, इजी हैं सारे. लेकिन मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, इजी के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना. ठीक है, ओके. ये हो गया हमारा 9 लाख अपॉन 4 लाख इज इक्वल टू 2.25:1. ठीक है. अब अगर हम नोटिस करें ये जो हमने दो इलस्ट्रेशन की, अ चेंज इन न्यूमरेटर अफेक्ट्स द रेशियो इन सेम डायरेक्शन. न्यूमरेटर अगर बढ़ जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर अगर कम हो जाएगा तो रेशियो कम हो जाएगा. इज इट सो और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इसको 9 की जगह अगर आप 10 लाख कर दोगे तो ये 2.25 से 2.5 हो जाएगा, है ना? और अगर कम Yes, कर sir. देंगे तो रेशियो भी कम हो जाएगा. डिनोमिनेटर का इफेक्ट ऑपोजिट होता है. चेंज इन डिनोमिनेटर अफेक्ट्स द रेशियो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी. इसे 4 लाख की जगह 2 लाख कर दो तो ये 5.5 आ जाएगा, है ना?
सपोज ए हैज ₹100 एंड बी हैज ₹10,000. क्यों होता है ऐसा? सपोज ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 10,000 रुपए हैं, दोनों को 100 रुपए और दे दिए जाएं. हु विल वैल्यू दिस एडिशनल अमाउंट मोर? तो जो 100 रुपए और मिले A. उसकी वैल्यू A. किसके लिए ज्यादा है? ए. A. ए, क्योंकि उसके लिए ये 100% इंक्रीज है. 100 रुपए पहले थे, 100 और मिल गए, मतलब 100% इंक्रीज हो गया उसके पास अमाउंट. जबकि बी के लिए कितना परसेंट इंक्रीज है ये? 1%. ओनली 1%. ठीक है. तो दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, सेम एब्सोल्यूट चेंज इज मोर परसेंटेज चेंज in the value which was less initially. Same absolute change is more percentage change or proportionate change in the value which was less initially. Clear है ये बात? Yes, sir. ये दोनों पॉइंट्स लिख लो, चेंज इन न्यूमरेटर वाला भी और ये एग्जांपल लिख के ये वाला भी. Yes, sir. Okay. We'll continue further in the next class. Any doubts up to here, anyone? No, sir. No, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir. बोलो.